This is Shivam Rajput back again with a new video on a video series of CSI and NGR for all sciences. So in this video, I am going to talk about our new product which is in the free resources section. Just click over there. Okay, and here you will get interactive animation websites. So this is the thing which will change the way you prepare for CSIR, the way you think about atmospheric sciences, about geology, about planetary sciences, then oceanography. Okay, this is a kind of innovative thing, a kind of innovative thing. Okay, so without wasting any time, let's start. Okay, here I have list of 25 websites. Okay, see, believe me, this kind of thing you will never get anywhere else in India right now. कहीं नहीं मिलेगा. It's over on my website only. Okay, so let's check one by one. I will give you the brief idea about every website over here, and it's your duty to explore more. The more you explore, the more you come to know about that thing. Okay, so let's start with the first website, that is called Meteor Earth, which is already opened over here. So this is Meteor Earth. Okay, it's a kind of 3D weather app, you can see. So Meteor Earth offers a global comprehensive weather forecast as a high resolution animation films. If you play this right now in India, we have daytime, right? If you play this, you can see the time is changing, and now India is turning into night. So it will give you the further forecast. Okay, 1 day forecast. So see, it's 12th of June, and after like 24 hours, it will turn into 13th of June. So you can see literally in 24 hours what is going to be changed. Okay, takes place. What change is going to take place. So if you click on the first sub menu, that is temperature, you can literally see where we have more temperature. Right now we know this is a June month, so northern hemisphere may we have this sun, right? So no doubt the temperature will be more over here. And if you see the southern part, here we have relatively cool conditions. On Antarctica it's entirely blue, so that simply means there is a cold conditions. Okay, then we have precipitation. You can see right now monsoon effect is there. The entire Southeast Asia we have monsoons. So here we have monsoon effect. Then cloud cover. Let's see cloud cover. So this is the cloud cover map, and even you can see thunderstorms. So these are all effect of monsoon. Okay, cumulonimbus clouds is going on. Okay, thunder clouds, and you can see the how it is changing. The clouds is moving in next 24 hours. You can literally see. देख रहे हो how it is changing with time, day and night, after 12 hours. Okay, then wind. See, this is the wind pattern, current wind pattern over India. The southwest monsoon, it is moving like this, no? Southwest. अब मॉनसून पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा. दिस विल रियली gonna be help you. Okay, बहुत मजा आएगा. Then we can see tropical storms also. So this is the track of a tropical storm which is going here right now. That is typhoon. It is considered as typhoon. Another, let's see, somewhere else tropical regions में. I think it's not, no tropical cyclone yet. Okay, नहीं है. चलो. This is your termination line between this day side and night side. This line is called termination line. Then we can see the pressures. प्रेशर मैंने क्लास में पढ़ाया भी है प्रेशर्स के बारे में. सो द प्रेशर ओवर इंडिया यू कैन लिटरली सी. देख रहे हो. एंड यू हैव टू एक्सप्लोर. आई विल टेल यू एवरीथिंग लाइक इन ब्रीफ. You have to explore. The more you explore, the more you get. Okay, so this is the our very first website called Meteor, and in menu section you can do this like this also. You can search any place over here. Okay, so then our next website is called earth.nullschool.net. Now it's very important. It's very interactive also. What you have to do is simply click over here. Right now mode air is selected, so you can literally see air is there. Okay, now we are having surface winds. So animation में here wind is selected and height is surface, so we can literally see surface wind is moving in different regions. Okay, sorry. Okay, now we have height is already selected, so we can change it also. So right now it's air. We can turn into currents. So currents देख सकते हैं ocean में. Click on the oceans.
can literally see how current is moving. You can turn into waves. So this is current and this is waves. Okay, in ocean how it is moving in real time. Then you can see chemistry also. So देखो यहाँ हम लोग we have nitrogen dioxide gas, we have sulfur dioxide gas. Okay, so wind में right now we can see the gases concentration. If you click suppose here in the dark region, here it gives the concentration of the particular gas is 412 parts per million by volume. Volume wise it is 412. Okay, wind speed 5 kilometers per hour. You can literally see the concentration in currents. On currents में कितना concentration है? So you can click and you can see the value, and even in the waves you can see what is the value. Okay, and you can change this also, different concentration of other compounds. You can also see particulate matters. So these particulate matters are present in the air, which simply pollutes the air. Okay, हम लोग देखे होंगे मेट्रो स्टेशन पर particulate matter 2.5, PM 2.5, PM10, PM1. So these are basically suspended particles in the atmosphere. It is aerosols, you can say. Okay, so you can see PM1 concentration सबसे ज़्यादा कहाँ है, PM 2.5 concentration is where high it is. So you can click over here in the North India and you can see 73 microgram per meter cube. यानी 1 meter cube air contains 73 microgram of PM 2.5 aerosols. Okay, वैसे ही sulfate aerosols, PM10 aerosols, like that. From space you can also see how Earth looks like. Okay, if you want to see auroras, click on the aurora, it will show you. Wait a second. Currently it is not showing any aurora. Here we can see aurora. Aurora is there. 17% visibility by chance. Okay, so 70% of visibility is there. Aurora, the green color thing here we can see. So yeah, it's an effect of aurora. Right now auroras are little bit less. Okay, then this is a map projection method. So you can use different map projection methods. In general we use this O type projection methods. Okay, and then you can also go for jet streams. So if you click over 10 hectopascals of height, you will see jet streams in both the hemisphere. Here we have this polar and subtropical jet streams, both are merged, and here this jet streams, northern hemisphere jet stream is there. So you can see the air speed 137 kilometers per hour. Remember this jet stream is at 12 kilometer height. It's not on the surface. Okay. You can see cyclones also. So what for cyclones studies, just click on the surface here and you can see here we have one cyclone, that is typhoon. In the previous website we see that कि यहाँ एक typhoon था, याद है previous website में. What you have to do is click on the tropical storm and you can see tropical storm is over here. यहाँ दिख रहा है this tropical storm. So this is also giving real time. This is also real time thing, and you can see the speed 51 km. It's right now in the depression stage. Okay, low wave depression form हुआ है. It will with time it will like become huge and huge. So yeah, so this is your earth.null school. So it will gives you current, wind, weather, ocean, pollution condition. Okay, and it is forecasted by supercomputers. So it has a good accuracy. Okay, the data is precise. Now moving to the next. So this is in the sky.org. Basically this website will give you day and night world maps. It will give you sun's current position, or also it will give you moon's current position, like that, where it is in the night and the daytime in right now. ये सारी चीज़ें दिखाएगा. So अभी जैसे कि बज रहा है 5:17. ओके, सो देखो अभी सन कहाँ है, यहाँ जस्ट ओवर दिस रीजन. ये देख रहे हो अफ्रीका के सहारा डेजर्ट के ऊपर. राइट नाउ सन इज देयर. वी नो हमारा जो अर्थ है वो मूव कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. राइट, आवर अर्थ इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सो सन की इस साइड की ओर जाएगा ना. एंड सी दिस इज द टर्मिनेटर लाइन. सो इधर रात है. दिस रीजन इज द नाइट रीजन. ओके, दिस रीजन. सो आफ्टर फ्यू आवर्स इंडिया में भी रात हो जाएगा. अभी 5 बज रहा है. सो इट विल गिव यू द करेंट सन्स पोजिशन. इज दिस क्लियर टू यू?
Then you can also change the date and see how sun moves up and down with date. So let me check. Right now it's 12th of June. See, August में कर रहे हैं, sun is moving down. If we move towards April, sun is moving से, देख रहे हो ना डायरेक्शन. ये जो मूवमेंट होता है सन का, इसको कहते हैं एनिलिमा. ओके, ये देख रहे हो सन का मूवमेंट विथ डेट हाउ इट चेंजेस. And you can reset time also. Time slider, if we can also check कि time slide करने से कैसे चेंज हो रहा है चीज़ें. So देखो, जैसे जैसे रात की ओर जा रहे हैं, इंडिया के ऊपर रात हो गया. If I turn it right left, it will be night. इधर भी night. In between there is a day time. So we have a gap of day time. Okay, in between two nights. So इसको एक्सप्लोर करो. यू कैन ऑल्सो चेंज द डेट. तुम देख सकते हो कि एग्जैक्टली 21 जून को या 21 सितंबर को टॉपिक ऑफ कैंसर पर सन जाता है कि नहीं, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सन जाता है कि नहीं. लेट्स चेक दिस. 21 जून इज योर इंटरनेशनल योगा डे और इस दिन सन टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है, राइट. सो लेट्स सी. देखो 21 जून, इट इज समवेयर हियर 23 डिग्री नॉर्थ. और ऐसा मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि एग्जैक्टली 21 जून को सन कहाँ चला जाता है, 23 पर, 23 डिग्री नॉर्थ पर. ओके, अगर हम टाइम चेंज करें तो ये इंडिया के ऊपर भी आएगा. सो टाइम इज राइट नाउ दिस वन. इसको तुम चेंज कर सकते हो. पीछे टाइम में जा रहे हैं, देखो कहाँ है सन, देख रहे हो टाइम में पीछे चले गए. सन इज ओवर हियर नाउ. ये देख रहे हो डे लाइट टाइम. ओके, सो this is our third website. Now let's see the fourth website. So this website is directly from the NASA. Okay, it will give you the real time view of our solar system, inner solar system. Okay, so click on the solar system first. You will see all 8 planets, different comets, asteroids, even our ISS. Okay, so I am moving to the inner solar system. Click on the inner solar system. Here you can see Ceres, asteroid, comet is there, Vesta and all. Then we have different planets. If you click on the Earth, you can literally see the Earth. इस पर क्लिक करो, अर्थ पर फोकस हो जाएगा. सो अर्थ, हियर वी कैन सी हबल टेलीस्कोप. इसको अर्थ को ऐसे रोटेट करोगे. आईएसएस पे क्लिक करो. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देख सकते हैं हम लोग इन रियल टाइम. इट्स वेरी अमेजिंग मैन, इट्स रियली अमेजिंग. वेट फॉर अ सेकेंड. देख रहे हो आईएसएस, दिस इज आईएसएस बाबा, थिंक ऑफ इट. सो यू कैन सी इट्स नासा आई. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो सी डिस्टेंस फ्रॉम द सन, वन वे लाइट टाइम टू द सन, कितना मिनट लगेगा. Length of the year 365 days. This is for Earth. Okay, and you can do this night and day. Right now ISS is in the dark side of the Earth. Okay, so if you put it down, it is in the dark side. और अगर इसको ऐसे देखो तो ये हो जाएगा डे साइड. मतलब तुमको ऐसे दिखाते हैं, जैसे क्लिक ऑन द अर्थ. ओके, इट इज मूविंग टू द अर्थ साइड. नाउ वन साइड इज डे, अदर साइड इज नाइट. If you do this, you will another side will be highlighted there. ISS देख रहा है ना कि डार्क साइड में. ये देखो राइट नाउ इट इज इन डार्क साइड, बट इफ यू वांट टू हाईलाइट, ये बटन पे क्लिक करो, HD पे क्लिक करोगे, ये मिलेगा. ओके, हेली कॉमेट. सी हेली कॉमेट, क्लिक ऑन द हेली कॉमेट. नाउ you will get the description about the heli comet over here, and if you double click on it, you will redirect to heli comet. No, it's not there. Okay, कोई नहीं. देखियो यहाँ हेली के बारे में भी दे रहा है. या इट इज डायरेक्टिंग टू द हेली. इट विल गिव यू द लोकेशन ऑल्सो. द comets are made up of dust and ice, frigid dust and ice. Okay, now this is very awesome. So have a look on this. You can directly go to the all these planets, moons, hypothetical planets. Okay, different moons of Saturn, Jupiter. Okay, so like that. This is very awesome for planetary sciences, for this thing, what to say, for astronomy also. Okay,
Now this is the another website. Okay, so this website is basically about the tide calendar. So it will give you, suppose you are belonging to a coastal region, you want to know कि कब हाई टाइड आएगा, कब लो टाइड होगा. सो ड्यूरिंग द हाई टाइड कुछ लोग ओशंस में उनका जरूरत पड़ता है, या फिशिंग करने के लिए हाई टाइड में जाना है. सो यू शुड नो ना टाइमिंग, क्योंकि हाई टाइड का टाइम डेली चेंज होते रहता है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, ये वेबसाइट खोलो, इंडिया पे जाओ. से मैं गोवा में रहता हूँ तो गोवा पे क्लिक करता हूँ. हियर वी हैव टू पोर्ट्स जहाँ ये टाइड मतलब चेक होता है टाइड के कब हाई टाइड होगा कब लो टाइड होगा यूजिंग टाइडल ग्वेज. सो मरमगांव पोर्ट पर हम देखते हैं. सो यहाँ देखो दे रहा है लास्ट टाइड हाई था 12:44 पर. मरमगांव पोर्ट इज ओवर हियर इन गोवा. नेक्स्ट टाइड अभी हाई है तो दूसरा लो आएगा, फिर सनसेट मूनसेट ये सब तुमको बताते हैं ये, ठीक है. So this is tide calendar. Then moving to the next website, this is windy.com and it's very amazing. Okay, it's very amazing. It will give you various things like winds, about winds. It will give you the details about rain, thunder, temperature, clouds, wave, air qualities, and even you can predict 10 days मतलब फ्यूचर में क्या हो रहा है. यू कैन सी द ट्रेजेक्टरी इन द नेक्स्ट 10 days. ओके, ये वेबसाइट बताता है आगे 10 दिन में क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें इस पर देख सकते हो. सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज से सेलेक्ट रेन एंड थंडर. क्लिक कर दिया रेन एंड थंडर पर, एंड राइट नाउ इट्स सैटरडे 12. ओके, हियर वी हैव मंडे 21. सो एग्जैक्टली 10 days में चेंजेस कैसे होंगे. सो जस्ट क्लिक ऑन द प्ले and you can literally see how in 10 days these rain and thunder varies. And in the same way you can see the future predictions of wind, future prediction of temperature, clouds, air quality and all. So देख रहे हो कैसे वेरी कर रहा है, नेक्स्ट 10 days तक बताता है. द फर्स्ट वेबसाइट इज मोर डायनेमिक इन नेचर, बस उसका एक लिमिटेशन है, वो एक दिन का बता रहा था. Here it's next 10 days. Okay, windy.com. See, it is varying. See over here, it is moving to the date in different dates. Okay, similarly wind पर भी देख सकते हैं हम लोग, wind कैसे vary करेगा like that, and waves कैसे vary करेंगे, ocean waves. This is about ocean waves. With time how ocean waves varies. यहाँ play कर दो, दिखेगा, देखो करेंट्स कैसे वेरी करेंगे लाइक दैट. सी टेम्परेचर देखते हैं, लेट्स सी द सी टेम्परेचर हाउ इट वेरीज. ये देख रहे हो. सो आई होप यू लाइक इट. ओके, अगर कहीं भी क्लिक करते हो तो वहाँ का तुमको टेम्परेचर भी दे रहा है 29 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अभी सी टेम्परेचर पर है. तो इट विल गिव यू, जैसे ये गल्फ एरिया है, गल्फ एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो 31 डिग्री सेल्सियस. हियर वी हैव गल्फ ऑफ सौराष्ट्र, गल्फ ऑफ कच्छ, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस. वही ओपन ओशन में जाएंगे टेम्परेचर थोड़ा कम आएगा, 29. इवन 1 डिग्री टेम्परेचर इज वेरी हाई इन अ केस ऑफ ओशंस. छोटा छोटा टेम्परेचर डिफरेंस इज वेरी ह्यूज इम्पैक्ट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वेबसाइट. नाउ दिस इज फॉर जियोलॉजी स्टूडेंट्स. It will give you the real time earthquake locations, their magnitude, then the region where it originates, basically focus of that, okay, earthquake. So let's see here. इंडिया पे जाते हैं. इंडिया के पास अभी अफगानिस्तान, इंडिया एंड ताजिकिस्तान बाउंड्री पर वी हैव अर्थक्वेक. ये कब आया है देखो, यहाँ डेट भी दे रहा है. यूनिवर्सल टाइम के अनुसार 5:30 प्लस 5:30. लोकेशन इज दिस वन, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. जो अर्थक्वेक आया है ये उसका मतलब फोकस, यू कैन से फोकस, ओके, जो सरफेस के नीचे होते हैं. सो फोकस इज 227 मीटर, 227 किलोमीटर नीचे. मैग्नीट्यूड क्या था 4.2, 36 किलोमीटर साउथ साउथ वेस्ट ऑफ अफगानिस्तान. इस रीजन के 36 किलोमीटर में ये आया हुआ है. सो यू कैन लिटरली सी द फोकस, हाइपोसेंटर, ईपी सेंटर, तो एक ही चीज़ हो गया, ईपी एंड फोकस एंड हाइपोसेंटर, इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स लोकेशन, टाइमिंग. ओके, तो ये चीज़ें तुमको पता चल जाएंगी. फिर देखो तुर्कमेनिस्तान में बता रहा है 4.6 लाइक दिस.
थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। अभी ये कैसे ही लोग करते हैं, सो सिस्मिक स्टेशंस आर ऑल अक्रॉस द ग्लोब, और रियल टाइम में यूएसजीएस मेंटेन करता है डेटास को, एंड यू कैन लिटरली सी अलोंग दिस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वी हैव मोर नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स। ये देख रहे हो इस रीजन में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। सो या दिस इज अबाउट अर्थक्वेक, रियल टाइम अर्थक्वेक नॉलेज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, this is skyweather.com. So again it is a weather forecast for India. Remember, this is for India. Here we'll get weather news, temperature in major cities across the world. Even for world you will come to know temperature variations. It will give you the live weather news updates about the weather in India. So here, so this is basically a news channel like website. Okay, if you want any news regarding the weather, you have to check this out. Okay, and you can see the inset datas. Advertisement इस पे ज़्यादा है. I don't like, that's the reason why I don't like this website. So यहाँ पे inset के तुमको मिल जाएंगे rainfall forecast, meteoset के डेटाज, skyset के डेटाज. Okay, so yeah, यहाँ देख सकते हो inset data, how it is varying with time, 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे, like that. Okay, moving to the next. Okay, not this one. Now Bhuvan app. So Bhuvan app is basically, this website will give you, it's an alternative, you can say it's an alternative of Google Earth, and it's more far better than, you can say it's more useful than Google Earth. देखो अब ये भी रिस्पेक्ट में समझना होगा, भुवन इज गुड फॉर इंडियन रीजन्स, ओके, जबकि जो गूगल मैप्स है इट इज़ फॉर द इंटायर रीजन, ओके, फॉर इंटायर ग्लोब। भुवन ज़्यादा डिटेल्स देता है अच्छे से देन द गूगल मैप्स। जब हम इंडिया की बात करें तो ऐसा नहीं कि ये भुवन मैप में तुमको और भी जगह का नहीं मिलेगा डिटेल, बट इंडिया के ऊपर ज़्यादा डिटेल में तुमको चीज़ें मिलेंगी, एंड यू कैन लिटरली कंपेयर दिस थिंग। ऐसा नहीं है, तुम कंपेयर करके देख सकते हो किसी भी रीजन का एकदम डिटेल, मतलब उसको पॉजिटिव करते जाओ, उसको क्या करते जाओ, मतलब जूम करते जाओ, एंड यू कैन लिटरली सी एनी एरिया हैविंग फार बेटर इमेजेस देन दिस गूगल मैप्स, ओके। सो कोई भी एरिया का डिटेल मैप तुमको यहाँ मिल जाएगा। मैं कल ही देख रहा था इसरो के लॉन्चिंग स्टेशंस, इसका यूज़ करके देखा, फिर मैंने देखा इसरो के लॉन्चिंग स्टेशंस यूजिंग गूगल मैप्स, और ये वाला क्या क्लियर दे रहा था, समवेयर यही है, ओके। फॉर दैट आई हैव टू फाइंड, सो ऐसे ही कहीं जूम करके दिखा देते हैं, इट विल टेक टाइम टू लोड। देख लो एनआरएसी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, ओके। सो इवन इंटरनेट स्पीड थोड़ा और फास्ट होगा तो इट विल क्लियर, इट विल टेक सम टाइम। देख रहे हो 50 मीटर तक पे चले गए अभी पिक्सल, 30 मीटर्स पर, और थोड़ा देर रखेंगे तो ये और भी इमेज क्लियर आने लगेगा, ओके। सो इट विल टेक टाइम, ओके। नाउ इट हैज़ बोथ 3D एंड 2D, इसमें दोनों है, सिर्फ 3D ही नहीं है 2D भी है। भुवन 3D पर अभी हम ऑन किए हैं, इफ़ यू जस्ट क्लिक ओवर हियर ऑन द भुवन, ये मेन्यू पर, ओके, कैसे होगा, लेट मी चेक, भुवन 3D, यहाँ से ये हटा, भुवन gov.in पर जाकर बस इंटर दबाओ। नाउ यू विल रीडायरेक्ट टू दिस पेज। सो इनिशियली हम ये खोल रहे थे भुवन 3D, दिस इज योर भुवन 2D, 2D में चीज़ें 2D में आएंगी, ओके। तो दिस इज द 2D मैप, ओके। सो इट्स अल्टरनेटिव ऑफ सिंपली गूगल अर्थ। नाउ दिस वेबसाइट इज रियली कूल मैन, रियली कूल। देखो ये इसमें अगर आप मरीन बायोलॉजी हो, अगर आपको ओशंस के ऑर्गेनिजम्स पसंद है, देन हैव अ लुक ऑन दिस। जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे यू विल कम टू नो द डेप्थ ऑफ एवरी ऑर्गेनिजम्स, ओके। जैसे यहाँ अटलांटिक सालमन, सो ये फर्स्ट 13 मीटर्स तक ही रहते हैं। पोलर बियर्स 39 मीटर्स तक जा सकते हैं, ये देख रहे हो ना, जहाँ रुक रहा है वहाँ तक जा सकते हैं, सॉरी 31 मीटर्स तक जा सकते हैं। उससे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लाइक दैट।
ब्लू टैंक 51 मीटर तक जा सकता है। ये देखो वेल, ये वेल कहाँ तक जा सकती है, 107 मीटर्स, किलर वेल, उससे नीचे नहीं जा सकती है। सो लाइक दिस यू विल गेट। अब देखो इधर डार्क दिख रहा है, क्यों? क्योंकि सनलाइट ऊपर वाले जोन्स में ही रहता है, राइट। ऐसे जैसे नीचे जाओगे, दिस इज द ट्वाइलाइट जोन, दिस इज द इंटरमीडिएट जोन। ऊपर वाला पूरा एकदम लाइटेड एरिया था, देन यू आर गेटिंग दिस ट्वाइलाइट जोन जहाँ लिटिल बिट ऑफ डार्कनेस इज देयर। द फर्स्ट इज, देखो ये देख रहे हो। सो एज वी मूव डाउन इट बिकम्स होल डार्क, और तुमको फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो लाइट इमिट करते हैं। उनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, कुछ कुछ के बारे में। स्वॉर्ड फेस, कोरल्स, कुछ कोरल्स नीचे तक रहते हैं, यू कैन सी लिटरली। और नीचे जाते हैं, लेट्स गो टू मरियाना ट्रेंच। ओके, ये सब ऑर्गेनिजम्स हैं, देख रहे हो। ये देखो टाइटेनिक 3831 मीटर के डीप पर टाइटेनिक अभी भी है। ओके, एंड ऑक्टोपस, यू कैन लिटरली सी। और नीचे जाते हैं, यहाँ क्या है, जेलीफिश, कॉम जेलीफिश। दिस इज द डीपेस्ट पॉइंट इन जावा ट्रेंच इन द इंडियन ओशन। ये डीपेस्ट पॉइंट है, कितना है, 7458 मीटर के आसपास। वी हैव टू गो टू 11,000। ये सबमरीन गया था, ये देख लो, इस सबमरीन यहाँ तक जा सकता है। एंड देन और नीचे जाते हैं, और नीचे आ गए। दिस इज द चैलेंजर डीप। ये सबमरीन गया था चैलेंजर डीप में, 10,919 मीटर। आसपास कोई ऑर्गेनिज्म ये भी दे रहा है कि अगर इस सबमरीन से निकलेंगे तो क्या होगा, क्लॉस्ट्रोफोबिया। ये देख रहे हो, हेडल एम्फीपोड्स। हेडल जोन इसी को कहते हैं, ट्रेंच वाले जोन को हेडल जोन कहते हैं। तो वहाँ ये ऑर्गेनिज्म सब जी सकते हैं। ओके, so like this it is very awesome, have a look. Then moving to the next, that is this one, Vanstuki. So ये बहुत अच्छा है, it's really good. So it will give you the live rain temperature maps, detailed forecast of your place. It will give you the data from best weather forecast models. So बहुत से मॉडल्स का यूज़ करता है, लाइक आइकन, लाइक जेम मॉडल, लाइक जीएफएस मॉडल। सो जो भी क्लाइमेटोलॉजिस्ट होगा दे नो बेटर। यू कैन लिटरली क्लिक ओवर हियर, प्रिसीव्ड टेम्परेचर, तो ये तुमको टेम्परेचर शो करेगा। अगर प्रेसिपिटेशन पे क्लिक करते हो सो इट विल गिव यू द रेनफॉल डेटा। अभी देख रहे हो, ये देखो यहाँ मिलीमीटर्स में रेनफॉल बता रहा है। सो जैसे गोवा में देखते हैं, यहाँ 9.5 मिलीमीटर अभी रेनफॉल हो रहा है। एंड हियर वी हैव थंडरस्टॉर्म्स लाइक कंडीशन। नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी मानसून अभी पहुँच चुका है, यू कैन सी 6.8 मिलीमीटर समवेयर वी हैव। यू कैन लिटरली जूम ऑल्सो, एक एक जगह का तुम देख सकते हो कि कितना वहाँ रेनफॉल हो रहा है रियल टाइम। ओके, मतलब लास्ट 3 आवर्स का ये डेटा मिलता है आप। देन रडार्स, ओके, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रडार डेटा आपको मिलेगा। सैटेलाइट्स, इफ़ यू वांट टू नो कि सैटेलाइट इन दैट एरिया विच इज़ वॉकिंग लाइक दैट, सो दैट यू कम टू नो। देन क्लाउड्स, ये देखो क्लाउड्स का दे रहा है डेटा। विंड स्पीड, विंड गस्ट भी बताएगा। बहुत से इसमें पैरामीटर्स हैं लिटरली। विंड गस्ट्स आ देयर। लेट्स सी थंडरस्टॉर्म, किस एरिया में थंडरस्टॉर्म्स हैं। सो यहाँ देख रहे हो, मतलब थंडरस्टॉर्म्स की एनर्जी दिखा रहा है जूल्स पर केजी में। तो ये जो रीजन है ना डार्क कलर वाले, दे आर हैविंग मोर एनर्जी, थंडरस्टॉर्म से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। स्नो कवर एरियाज देखते हैं। सो ये सब हिमालयाज के स्नो कवर एरियाज। एयर क्वालिटी भी देख सकते हो, PM 2.5 का। तो PM 2.5 द एंटायर दिस वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ वेस्ट रीजन, चाइना, हमेशा ऐसे एकदम पोल्यूशन तो रहता ही है, नो डाउट। PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन गैस, डस्ट कहाँ क्या है सब बताएगा।
लेट्स सी द डस्ट डेटा, जहाँ बारिश हो रहा है वहाँ डस्ट कम होगा, नो डाउट। जो रीजन्स में अभी तक मानसून नहीं पहुंचा है वहाँ डस्ट ज़्यादा होगा। देखो इंटायर थार डेजर्ट, द मिडिल ईस्ट रीजन हैविंग मोर डस्ट, इधर रेनफॉल अभी चल रहा है, सो डस्ट प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। सो या क्रेजी राइट, वेंट टू स्काई। नाउ वर्ल्ड सनलाइट मैप, दिस इज अगेन अ गुड वेबसाइट। सो यहाँ आपको क्या मिल रहा है, लेट्स हैव अ लुक। So, was the sun rise and set all over the world on the real time? It will give you. It will give you computer generated illustration of Earth's pattern of sunlight, darkness, cloud updates, daily current weather satellite imaginary. मतलब हर दिन का सेटेलाइट है, जैसे इतना दूर में अभी डे है, हम लोग जान रहे हैं ना, अर्थ वेस्ट से ईस्ट घूम रहा है, सो सन इज मूविंग इन दिस साइड एक्चुअली, सन इज, अर्थ इज मूविंग, सन तो वही रहता है, सन राइज सेट नहीं करता है। सो कुछ देर के बाद यहाँ रात हो जाएगा इंडिया के ऊपर। ओके, सो या इट्स सिंपल वेबसाइट बट अगेन अमेजिंग। देन जूम, साइक्लोन्स के बारे में अगर जानना है, टोर्नेडोज के बारे में जानना है, दिस इज द बेस्ट वेबसाइट। हम साइक्लोन के लिए इसको प्रीफर करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ देखो अभी साइक्लोन है, ये इसका पाथ बता रहा है एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द लैंड। हनोई, हनोई इज इन वियतनाम, वहाँ की एक सिटी है एंड यू कैन सी द ट्रैक, बता रहा है कि 12 जून को यहाँ था, स्पीड कितना रहेगा, कब 11 जून को यहाँ पहुँचेगा, लाइक दैट। सो लाइक दैट। ओके, यहाँ से तुम और भी चीज़ें, जूम अर्थ पे यहाँ क्लिक करके यू विल कम टू नो HD सैटेलाइट बेस मैप, रेन रेडार, स्टॉर्म ट्रैक्स। अभी स्टॉर्म ट्रैक्स पे क्लिक करते हैं, दिखाएगा तुमको स्टॉर्म ट्रैक। देखो ये स्टॉर्म ट्रैक यहाँ ओपन हो गया, लेवल्स पे रेन रेडार भी अभी ऑन है, जो भी लाइटेड है वो ऑन है। डे नाइट लाइन अगर देखना है तो ये है डे नाइट लाइन, ये जो लाइन देख रहे हो ना, इसके इधर रात है, इस साइड डे है, सो दिस इज योर डे नाइट लाइन। कुछ चीज़ों को हटा भी सकते हो, जैसे अभी चल रहा है विंड को हटा दो, क्लियर। रेन रेडार को हटा दो, रेन खत्म, ये रेन रेडार दे रहा है तुमको। फायर एंड हीट, अगर कहीं फॉरेस्ट फायर लगा है तो ये बताएगा फायर एंड हीट, कहीं आग लगा है, देख रहे हो। नॉट ओनली फायर, जरूरी नहीं कि फॉरेस्ट फायर ही, इवन मैन मेड ऑल्सो इट विल गिव यू। देन डे नाइट लाइन हटा दिए, ऑन कर दिए। ओके, सो या दिस इज योर जूम अर्थ। ओके, नाउ अनदर वेबसाइट, इट विल गिव यू सब सोलर पॉइंट एंड सब लूनर पॉइंट। सो सब सोलर और सब लूनर पॉइंट होता क्या है? इट इज बेसिकली अ पॉइंट जहां अगर सन हो, ओके, और तुम उस सन के नीचे अगर डायरेक्ट खड़ा होगा, ठीक उसके नीचे, तो तुम्हारा शैडो नहीं बनेगा। दैट इज द सब सोलर एंड सब लूनर पॉइंट। मतलब अर्थ सरफेस पे वैसे पॉइंट्स को कहते हैं जहां तुम्हारा शैडो नहीं बनता है, ठीक है। और इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऐसा एक दिन आता है, इवन इन इंडिया ऐसा एक दिन आएगा, इन द ट्रॉपिकल जोन्स ऑफ इंडिया, नॉट सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन्स, क्योंकि सन इसी में मूव करता है ना, 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ के बीच में, 23.5 नॉर्थ साउथ के बीच में। तो वहाँ अगर तुम खड़े रहोगे, जैसे ये देखो, ये जो है ये सब सोलर पॉइंट है, ये ब्लू वाला सब लूनर पॉइंट है। यानी अगर कोई बंदा इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर खड़ा रहे, यहाँ देखो दे रहा है सन इज करेंटली अबाउट 23.2 डिग्री नॉर्थ एंड 11.4 डिग्री ईस्ट, अगर यहाँ कोई खड़ा रहे तो उसका शैडो नहीं बनेगा, क्योंकि सन ठीक उसके सर के ऊपर है। लेकिन अभी तुम इंडिया में खड़े रहो और सनलाइट सपोज इंडिया में पहुंच रहा हो, तो तुम्हारा सन शैडो बनाएगा। इवन इफ तुम 12 बजे दिन में भी अगर शैडो देखो, इवन 12 बजे दिन में, क्यों बनेगा? क्योंकि सन अभी यहाँ है, ना कि इंडिया के ऊपर है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि 12 बजे एग्जैक्टली ऑन द नून टाइम तुम्हारा शैडो बने ही, नहीं भी बनता है। कब नहीं बनता है? जब आप ये सब सोलर पॉइंट से दूर रहे। वैसे ही मून के लिए भी वैलिड है। अब मून की शैडो उतनी स्ट्रांग दिखती नहीं है अनलेस एंड अनटिल ये फुल मून हो। ओके, सन वाला थोड़ा इजिली अचीवेबल है एंड यू कैन रीड दिस। मैंने सिंपल भाषा में बता दिया व्हाट इज सब सोलर पॉइंट, व्हाट इज सब लूनर पॉइंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, स्काई मार्वल्स। क्या वेबसाइट है, दिस इज ऑसम वेबसाइट। आई विल सजेस्ट कि तुम लोग इसको एक्सप्लोर करो। द मोर यू एक्सप्लोर, द मोर यू कम टू नो अबाउट दिस एस्ट्रोफिजिक्स, प्लेनेटरी साइंसेज, एस्ट्रोनॉमी। क्या कमाल का चीज़ है, इसमें बहुत चीज़ देता है, बहुत चीज़। सो ये देखो, यहाँ अगर तुम क्लिक करोगे ना तो क्लस्टर ऑफ स्टार्स को देख सकते हो आसपास। ये जो तुमको बता रहा है अभी करेंट सन का पोजीशन बता रहा है। दिस साइड वी हैव नाइट,
और नीचे जाओगे, करेंट सोलर सिस्टम पे क्लिक करना है, 3D में, 2D में, यू कैन क्लिक ओवर हियर एंड यू विल सी। देन यू कैन सी अबाउट मार्स प्रिजर्वेंस रोवर जो अभी अराइव हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें उसमें ये है, मतलब अभी तक खोजी हैं, उसके बारे में यहाँ से क्लिक करके जा सकते हो। सन स्पॉट्स के बारे में बताता है कि अभी कितने सन स्पॉट्स हैं वर्सेस मून स्पॉट्स नहीं, मून का साइज बताएगा कि व्हेन वी हैव दिस सुपर मून, कब सुपर मून नहीं था। यहाँ तुमको कोई भी प्लैनेट के बारे में जानना हो, एनीथिंग, तो वो इस पर क्लिक करो, यू विल कम टू नो। अगर तुमको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे के बारे में जानना है तो तुमको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बताएगा, सी यू। ओके, रियल टाइम में उसका व्यू दिखाएगा एंड ऑल। ओके, ISS ट्रैकर इसमें बेसिकली लगा हुआ है। एंड देन यू कैन सी कि अभी एपीलियन पर है कि पेरिलियन पर है, ये करेंट बताएगा। ओके, देन बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं इसमें, मतलब इसके लिए हम एक डिफरेंट वीडियो ही बना देंगे। इट विल टेक आई थिंक 1 आवर टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। मार्स के बारे में बहुत चीज़ें हैं, वॉयेजर के बारे में जानना है तुमको, द फुल मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में जानना है, कुछ भी यहाँ अवेलेबल है, जस्ट एक्सप्लोर इट। Okay, so we have this another website where it will give you the track of ISS। जैसे सपोज यू आर हैविंग टेलीस्कोप, तुमको ISS देखना है, अगर इंडिया के ऊपर ISS आएगा यानी, और या इंडिया के फील्ड ऑफ व्यू जोन में आएगा, तभी तो तुम ISS को टेलीस्कोप से देख सकते हो, राइट? अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ये तुमको बताता है कि कितने बजे इंडिया के ऊपर से पास करेगा, ताकि हम लोग उसको टेलीस्कोप से देख सकें। और बहुत सी चीज़ें बता रहा है, रियल टाइम में लोकेशन क्या है ISS का, ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की वेबसाइट है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट। ओके, ये बहुत कमाल का है। सो चेक आउट योर फेवरेट मरीन एनिमल्स ओवर हियर, फ्रॉम शार्क टू सी टर्टल्स टू द इकोसिस्टम एंड अदर डिफरेंट इकोसिस्टम, कोरल इकोसिस्टम। दिस इज द राइट प्लेस फॉर डीप डाइव इन द ओशन। ओके, सो जैसे कि तुमको सिफालोपोड्स के बारे में, क्रस्टेशियंस के बारे में जानना है, कोरल्स के बारे में जानना है, से मरीन मैमल्स के बारे में जानना है, जस्ट क्लिक ऑन द मरीन मैमल्स एंड यू विल रीडायरेक्ट टू ऑल द मैमल्स। देख रहे हो, सारा एक साथ, अमेजिंग है। हम तो 2-2 घंटे यही देख रहे थे। किसी पे भी क्लिक करो, लर्न मोर, यू विल कम टू नो। जैसे लियोपर्ड सी, इसके बारे में जानना है, क्लिक ऑन द दिस थिंग, सी एवरी डेटा ऑन योर फिंगर टिप्स। उसके रिगार्डिंग वीडियो भी मिलेगा, यू विल गेट एवरीथिंग ओवर हियर रिगार्डिंग दिस मरीन बायोलॉजी। देखो, मजा आएगा। ये देख रहे हो इतने हैं। सी बर्ड्स के बारे में जानना है, सी बर्ड्स पे क्लिक करो, सी किसी पे भी क्लिक कर दो। आर्कटिक टर्न, कमाल है, राइट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ किलिंग कर्व। सो इसको किलिंग पढ़ते हैं, मतलब समझ रहे हो ना? लिटरली ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताता है कि डेली वेरिएशन, जैसे आज का रीडिंग है 419.14 ppm, एंड ये रीडिंग कहाँ लिया गया है? ये लिया गया है आपको हवाई में, मौना लवा ऑब्जर्वेटरी है उधर, वहीं ये कॉन्सेंट्रेशन लिया गया है, अवे फ्रॉम ऑल दीज पोल्यूशंस एंड डस्ट। वहाँ इतना कॉन्सेंट्रेशन है। अब सोचो अगर तुम पॉल्यूटेड सिटी में हो तो वहाँ कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा। जो हम लोग पढ़ते हैं ना 0.03% ऑफ CO2, ये पुराना डेटा है, दिस इज द रियल डेटा, और वो भी अनपोल्यूटेड जगह पर, इन हवाई, इन द सेंटर ऑफ पैसिफिक ओशन, समवेयर इन द पैसिफिक ओशन। सो या ये CO2 की लेटेस्ट रीडिंग बताते रहता है। किलिंग कर्व, ये किलिंग साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, लाइक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है एंड ऑल, और लिटरली कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो हम लोग मर जाएंगे। सो किलिंग कर्व इज रियली किलिंग अस। ओके, वी ऑल नो। सो यहाँ तुम सब देख सकते हो, वीकली एवरेज, डेली एवरेज एंड आवर्ली एवरेज, सारे डेटाज यहाँ अवेलेबल है। ओके, इज दिस क्लियर? और ये देखो 1960 से 2020 तक कैसे कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है, देख रहे हो ना? 310 से ये फाइनली पहुंच गया 420 के आसपास। एंड वाई इट इज अप एंड डाउन, क्यों एक साल में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और क्यों कम हो रहा है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ, बताओ, फॉल सीजन। हम लोग जानते हैं जो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसमें से अराउंड 50%, इवन मोर देन 50% इज जनरेटेड बाई आवर ओशंस। रिमेनिंग जो है वो लैंड के ट्रीज करते हैं।
मतलब ओशंस आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर वो ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होंगे, राइट। अब देखो लैंड प्लांट्स का, देखो लैंड प्लांट्स पर क्या है, ट्रीज भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, ऑक्सीजन जनरेट करती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट एक साल में क्या होता है, देर इज अ स्प्रिंग सीजन एंड देर इज अ फॉल सीजन। स्प्रिंग सीजन में नए पत्ते आते हैं, सो देर इज अ मोर इनटेक ऑफ CO2, तो CO2 एटमोसफेयर में कम होने लगेगा। फॉल सीजन में क्या होता है कि पत्ते गिर जाते हैं और पत्तों में ही तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसी में तो खाना बन रहा है, सो उसी में CO2 यूटिलाइज कर कर वो ऑक्सीजन जनरेट कर रहा है। अगर पत्ते नहीं रहेंगे तो एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगेगा। सो दैट्स द रीजन वाई देर इज अ एनुअल वेरिएशन in this thing. Okay, annual variation in carbon dioxide concentration. Okay, now moving to the next. So this is live space. ये अफार टीवी, यहाँ पर बेसिकली तुमको लाइव ISS का ये मिलेगा वीडियो। सो यू इफ़ यू प्ले दिस विल कम टू नो कि ISS अभी कहाँ है। देखो ये ट्रैक दिखा रहा है ISS का, अभी इंडोनेशिया पर से CAM-1 से ये मतलब क्रॉस करने वाला है लगता है। ISS इज समवेयर हियर नाइट साइड, देख रहे हो ना इंडिया में। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, देखो इंडिया के इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर। सो अगर तुमको स्पेस साइंस में इंटरेस्ट है, इफ़ यू हैव टेलीस्कोप, ये देखते रहो इस पर लाइव। ये देख रहा है, देखो यहाँ दे रहा है पोजीशन इसका, और ये CAM-1। ओके, एक्चुअली में बहुत सी वेब यहाँ चैनल्स हैं जो लाइव ISS देती हैं, इवन नासा का भी है लाइव ISS। जस्ट क्लिक करो और भी डिटेल्स, जैसे ये देखो स्पेस वीडियो अफार टीवी लाइव नाउ चल रहा है, 134 वॉचिंग, और मेरे साथ तुम लोग भी देख रहे हो अभी। ओके, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। ये देखो, ये देख रहे हो, दिस इज लाइव ब्रो, लाइव। सो CSIR निकालो, ज्वाइन इसरो एंड फील ऑल दिस थिंग्स नो। मतलब एटलीस्ट जा नहीं सकते तो उनके लिए काम तो कर सकते हैं पृथ्वी पर रहकर। वी नो कि हम लोग एस्ट्रोनॉट सब नहीं बन सकते हैं, राइट, बट स्टिल क्या पता बन जाए। ज्वाइन इसरो, इसीलिए तो CSIR निकालना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ओके, अगेन ये CO2 कॉन्सेंट्रेशन देता है फ्रॉम दिस माउना लोआ ऑब्जर्वेटरी हवाई। डेली के अपडेट्स तुमको मिलेंगे ये इस पर, और तुम कंपेयर भी कर सकते हो कि हर ईयर में देखो कैसे चेंज हुआ है। 2017 में 403.27 था, फिर 18 में ये 2 बढ़ा, और 19 में 3 बढ़ गया। तो देख रहे हो ना, रेट इज नॉट कांस्टेंट ओवर द ईयर, रेट इज इवन इंक्रीजिंग। पहले 2 बढ़ रहा था, अब 3 के रेट से बढ़ रहा है, और ये तो 19 तक का है। 20 में 21 में देखो 21 का ये 419 हो गया। सो ऑल दिस थिंग्स। ओके, नाउ ये कमाल की चीज़ है, ये कमाल की चीज़ है। सो टुडेज वेदर मैप, अगर इस पर क्लिक करोगे तुमको ये देखो यहाँ दे रहा है, यू विल कम टू नो अबाउट द टेम्परेचर। अगर तुमको चाहिए टेम्परेचर एनामोली तो एनामोली का मैप देगा। प्रेसिपिटेशन क्लाउड के बारे में चाहिए, ये देखो। बट सी सिंस दिस पर्टिकुलर वेबसाइट इज हैंडल्ड बाय अमेरिका, तो ये हमेशा अमेरिका के ऊपर फोकस रखकर बताएगा, ये इंडिया का इधर नहीं बताने वाला है। सो अगर अटलांटिक पैसिफिक इन रीजन्स के बारे में इफ़ यू वांट टू नो समथिंग देन यूज दिस वेबसाइट। ओके, डिटेल डेटा बताता है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड को फोकस नहीं कर रहा है। सो या डेटा विल बी मोर प्रिसाइज इन दिस केस। सी लेवल प्रेशर देखना है, सो सी लेवल प्रेशर, बट ऑलवेज अमेरिका सेंटर में रहेगा। ओके, हियर अमेरिका कनाडा रीजन एंड ऑल। ओके, नाउ ये वेबसाइट बहुत कमाल का है, देखो इसमें बहुत चीज़ बताता है। सो जैसे देखो ग्लोबल टेम्परेचर का भी दे रहा है, लेटेस्ट एनुअल एवरेज एनोमली ऑफ 2020 इतने डिग्री 1.02 डिग्री सेल्सियस ऑफ फ़ारेनहाइट में इतना। हाउ द टेम्परेचर इज वेरिंग ओवर द ईयर, 1880 से देखो 2020 टेम्परेचर का वेरिएशन कितना हो रहा है, 1.02 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। और जब लार्ज लेवल पर 1.02 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ से तुमको डेटा भी मिलेगा। ओके, ये प्ले करके दिखाते हैं तुमको कैसे टेम्परेचर वैरी हो रहा है। 1884 1884 से लेकर 2020 के बीच में कैसे टेम्परेचर ग्लोब का बढ़ा है, कैन लिटरली सी। देख रहे हो, देखो मोर वार्म रीजन्स, अभी देखो
दैट्स वाई ग्लोबल वार्मिंग इज देयर नो। ओके, सो ये तो हो गया ग्लोबल टेम्परेचर। ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड देखना है, क्लिक ऑन द ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड थिंग। यहाँ तुमको ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा 416। अगेन ये दे रहा है कि देखो इंक्रीजिंग कर्व कैसे है, 2005 से लेकर 2021 तक का डेटा तुमको यहाँ से डाउनलोड डेटा कर सकते हो। बेसिकली ये तुमको हेल्प करेगा डेटाज डाउनलोड करने में रिसर्च पर्पज के लिए एंड योर फॉर योर इंटरेस्ट। आर्कटिक सी आइस, आर्कटिक सी आइस हम लोग जानते हैं आर्कटिक रीजन इज नॉट अ कॉन्टिनेंटल आइस, इट्स अ सी आइस। तो वहाँ देख लो डिक्लाइन हो रहा है, और आर्कटिक में अभी क्यों डिक्लाइन कर रहा है? अगेन ग्लोबल वार्मिंग। इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा वहाँ आइस होते थे, और क्यों अप एंड डाउन कर्व्स हैं। सो समर्स में मेल्ट कर जाता है सी आइस, विंटर्स में अगेन जब जाता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ देखो डाउनफॉल हुआ है, आर्कटिक के आइस कम हुए हैं ओवर अ ईयर। ओके, आइस सीट्स देखा जाए, वर्ल्ड के आइस सीट्स कहाँ हैं? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, इन रीजन्स में आइस सीट में भी देखो फॉल हो रहा है। ओके, हम लोग देख सकते हैं अंटार्कटिका का ये है अंटार्कटिका का गीगा टन्स में कैसे ये कम हो रहा है। ग्रेस सेटेलाइट से ये डेटा निकाला गया है, ये देख रहे हो 151 बिलियन मेट्रिक टन्स पर ईयर, इतना चेंज है 151 बिलियन मेट्रिक टन्स। ग्रीनलैंड का यहाँ देखो उससे ज़्यादा है मेल्टिंग, 277 बिलियन मेट्रिक टन। अब क्यों ग्रीनलैंड में ज़्यादा है? क्योंकि इट इज़ सराउंडेड बाय पॉपुलेशन, इट इज़ सराउंडेड बाय लैंड, सो इट इज़ रिलेटिवली वार्म। इसके चारों ओर कोल्ड करंट का ये नहीं है, जबकि अंटार्कटिका के चारों ओर ये है बेसी सी विच इज़ अ कोल्ड करंट, सो इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लैंड, इट इज़ अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। दिस ग्रीनलैंड इज नॉट एग्जैक्टली ऑन द नॉर्थ पोल, ठीक है। सो इसके कारण यहाँ मेल्टिंग थोड़ा ज़्यादा है। Moving on the next, okay, so this will give you air pollution, world air pollution, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, जो तुमको रोड पर दिखता है। तो तुम सपोज इंडिया के किसी भी एरिया में रह रहे हो, से गोवा के पास हमें, तो हम यहाँ अगर क्लिक करते हैं नवी मुंबई, देखो नवी मुंबई का दिखा रहा है। सो यहाँ बताएगा तुमको अभी 79 है, फॉर हेल्थ इट इज़ मॉडरेट। ओके, जो जितना ही डार्क होगा वो उतना ही खराब होगा, जैसे 172 अनहेल्दी, अनहेल्दी यहाँ 172 है। ये यहाँ तो वो ये भी दे रहा है कि कितने परसेंट PM 2.5 वाले एरोसोल्स हैं, 2 वाले कितने एरोसोल्स हैं, ऑल दिस थिंग्स। ये देखो एयर क्वालिटी का स्केल है, अगर ग्रीन कलर का रीजन है दैट इज एयर क्वालिटी इज गुड, सेटिस्फैक्टरी, पॉल्यूशन फ्री जोन है, मतलब यहाँ लेस पॉल्यूशन है, नो रिस्क। ये देखो हजार्डस, अगर ऐसा कोई कलर मिलता है सो दैट इज़ वेरी हजार्डस। उनको लग रहा है कि ये है हजार्डस कैटेगरी में। कौन सा रीजन है? पटना, सामनपुरा, देख रहे हो अभी वहाँ रेनफॉल हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखो एक और हजार्डस है, कौन जगह है? नरनौल, ये शायद यहाँ है हरियाणा के पास। देन हिसार, हिसार डिस्ट्रिक्ट पंजाब के आसपास। सो बहुत से ऐसे रीजन है जो बहुत अनहेल्दी है। यहाँ रहने का मतलब हजार्डस का मतलब देखो, एवरीवन में एक्सपीरियंस मोर सीरियस हेल्थ इफेक्ट, दिस इज वेरी अनहेल्दी, ऐसे करके। सो ऑन अ लॉन्ग टाइम स्पेन इट विल इफेक्ट योर बॉडी। सो इस तरह से आई कवर्ड ऑल 25 वेबसाइट। सारे वेबसाइट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ है, मतलब ब्रीफ इंट्रो। डिटेल में जानना है सो यू हैव टू डू एट योर ओन। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है जस्ट लेट मी नो, इसी वीडियो के कमेंट में डाल देना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट एंड यूज़ दिस गाइज, यूज़ दिस। क्या मज़ा आएगा सीखने में, ओशियन एटमॉस्फेयर प्लानिटरी साइंसेस। ओके, एंड मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अगर आप वो सॉल्व करोगे ना तुमको इधर से यूज़ पड़ेगा ये सारे वेबसाइट्स का, क्योंकि मैंने इन सारे वेबसाइट से भी चीज़ें निकाली हैं। सो दैट्स इट फॉर द टुडे, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।